So in our previous lecture we are discussing sliding window. There is the two parts, fixed size sliding window and dynamic sliding window, and other is the two pointers. Okay, and the next is prefix sum and suffix sum. So we are discussing these things now today. This is the lecture number 6 and array practice 5. In this lecture we are covered how to use map, or how you can use the unordered map in C++. The second thing is how we manipulate or how we solve the problem in range sum query immutable 2D. ठीक है, तो इन द प्रीवियस लेक्चर आई विल डिस्कस रेंज सम क्वेरी 1D जो कि हम प्रीफिक्स सम करके सॉल्व कर रहे थे. देन टुडे आई विल डिस्कस और आई विल सी द हाउ वी सॉल्व द रेंज सम क्वेरी 2D. ठीक है, एंड अनऑर्डर्ड सेट को अनऑर्डर्ड मैप को कैसे यूज़ करते हैं. दीज टू थिंग्स वी आर सीइंग दिस लेक्चर. सो द फर्स्ट थिंग इज की पेयर और टू सम प्रॉब्लम. ठीक है, लेट्स सी द प्रॉब्लम. What is the problem? To sum lead code number I don't know, but the problem is given an array of integer nums नाम का कोई array है. The target is 9, in this case 9. Return the indices of two numbers such as they add up to target. It means मुझे दो नंबर ऐड करना है जिसका सम टारगेट के इक्वल होगा. You may assume that each input would exactly one solution. You may not use the same element twice. मतलब अगर 8 है तो एक एरे में अगर 4 एक बार दिया है ना, तो इसको हम दो बार सम नहीं कर सकते. मतलब 4 + 4 दिस इज द आंसर. नो. क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे. एक इजी लेवल का क्वेश्चन है. इफ़ आई ट्राई टू सॉल्व दिस using two for loop, here is one pointer and others j pointer is checking all of these, and then if we getting the number, ठीक है, i के साथ अगर कोई j का कोई पॉइंटर सम करके टारगेट हो जाता है, then we return the number. But if we not get the number, then the I pointer goes to this index and then the j pointer check it here. ठीक है, so this is the approach. like two for loop यूज़ करेंगे, so the time complexity is big of n square. But we are not going with this approach. we try to solve this is optimized version. ठीक है, how can I solve, how can I think, and how can I use the algorithm. First I create a map or called unordered map. ठीक है, then I will go here the first index. ठीक है, this is 2. what is the more value to fulfill the target number? what is the more? 7 na. if the next element is 7, then the 7 + 2 is 9. so how I get the 7? how I get the more value? target minus 2. so this is the more required. ठीक है, मुझे क्या करना कि यहाँ पे जो more आया, I will check it here. but in the first case when the element is 2, the map is empty, so there is no more element. ठीक है, तो what I will do, I will go to the next index, that is 7, and one thing I do, I will keep these two into the map. ठीक है, with the corresponding index. 2 with the corresponding index मतलब 0. ठीक है, 0. then when I into the 7,
ठीक है। व्हाट इज़ द मोर वैल्यू? मोर वैल्यू मतलब कितना चाहिए और कितना चाहिए टू मैच द टारगेट, ठीक है। तो टारगेट -7 in this case. So what is the more? 2. Then I will check, is the more value is available in the map? Yes, 2 is available in the map with corresponding 0 value. So I will find the matching number. I will find the two numbers which some have the match the target, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ऑन दैट इंडेक्स जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, उसको रिटर्न करना है। एंड उसके साथ साथ जिसको हम मैप में फाइंड किए उसका जो सेकंड एलिमेंट है, मतलब ये जो इंडेक्स है, इसको हम रिटर्न करेंगे। मतलब आई एंड जो मैप का जो सेकंड इंडेक्स है उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर, दैट्स इज द एल्गोरिथम, ठीक है। तो लेट्स चेक द कोड। फर्स्ट आई विल डिक्लेयर अनऑर्डर्ड मैप लाइक दिस, ठीक है। इंट करके रखा है, मतलब दिस इज़ द की एंड दिस इज़ द पेयर, मतलब की पेयर वैल्यू में स्टोर होता है मैप में। सो नेक्स्ट इज़ द साइज एंड दिस इज़ द फॉर लूप। आई एम टेकिंग ट्रेवर्स द फुल एरे, होल एरे, ठीक है। तो आई टेक अ लूप एंड दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज नंबर ऑफ द ith इंडेक्स नंबर एंड व्हाट इज़ द मोर नंबर, टारगेट माइनस नंबर, ठीक है। देन व्हाट कैन आई डू, आई फाइंड मैप डॉट फाइंड मोर, कितना है। अगर मुझे फाइंड हो गया तो ith इंडेक्स प्लस जो सेकंड इंडेक्स है मैप में वो हम रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज आई स्टोर द मैप इन द ith नंबर, ठीक है। अदरवाइज मैं स्टोर कर दूंगा मैप में जो कि मैंने 2 स्टोर किया था उसके 0 के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स के साथ, वो मैंने स्टोर कर दूंगा। अगर पूरा लूप चल गया, पूरा सब हो गया, मुझे नहीं मिला तो रिटर्न कर दूंगा माइनस, ठीक है, -1 सो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन and that is the way to use the unordered map, ठीक है। So the next problem is range sum query 2Ds, ठीक है। So what the problem says, given in 2D array, ठीक है। नो इस क्वेश्चन को हम लीड कोड 304 है तो लीड कोड पे ही चेक कर लेते हैं। रेंज सम क्वेरी 2Ds इम्यूटेबल, ठीक है। तो गिवन एन 2D एरे मैट्रिक्स हैंडल मल्टीपल क्वेरी ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ठीक है। कैलकुलेट द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इनसाइड द रेक्टेंगल, डिफाइंड इट्स अपर लेफ्ट कॉर्नर रो 1 एंड कॉलम 1। जो रो 1 एंड कॉलम 1 है तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये दिया होगा रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2, ठीक है। रो 1 एंड कॉलम 1 जो होगा वो है अपर लेफ्ट, ठीक है, अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड द लोअर राइट कॉर्नर इज रो 2 एंड कॉलम 2, ठीक है। रो 2 एंड कॉलम 2 इज द लोअर राइट कॉर्नर, ठीक है। तो इन दिस केस, in this 2D matrix, what is the, if I taking this like 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, but I can take this, ठीक है। तो if the row 1 and column is 1 1 1 1, this is the row 1 and this is the column 1, ठीक है। and the row 2 and column 2, row 2 and column 2 is 2 2, ठीक है। तो row 1 and column 1 is the upper left corner and this is the lower right corner, ठीक है, 2 2, ठीक है। तो इन सब में से जो रेक्टेंगल होगा उसका सम निकालना है मुझे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम जाएंगे रो 1 से रो 2 तक, ठीक है, एक फॉर लूप में, ठीक है, रो 2 तक। देन द इनर फॉर लूप में हम क्या करेंगे, कॉलम 1 से लेके कॉलम 2 तक ट्रैवर्स करेंगे। मतलब इन द फर्स्ट फॉर लूप, व्हेन आई इन द फर्स्ट फॉर लूप आई विल ट्रैवर्स द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है, एंड ऐड टू द सम वेरिएबल, ठीक है। एंड देन आई विल गो टू द नेक्स्ट रो and traverse this column and this column and add to the sum variable. So what is the time complexity here? In this case the time complexity is big O of n square, ठीक है। तो big O of n square तो 2 लूप के लिए, 2 लूप के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, लाइक दिस इज़ फॉर 1 क्वेरी, एक क्वेरी के लिए, बट यहाँ पे क्वेरी नंबर n हो सकता है। ये जो क्वेरी है वो n क्वेरीज पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। एक क्वेरी के लिए बिग O ऑफ n स्क्वायर, तो n क्वेरी के लिए क्या आएगा,
बी गो अप एन स्क्वायर इंटू एन आएगा, ठीक है। तो बी गो अप एन क्यूब की तरह आ जाएगा द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एफिशिएंट तो नहीं है ना ये। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं विथ सम रिड्यूस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो इफ़ आई टेकिंग दिस एरेज अप टू दिस, ठीक है। सो द प्रीफिक्स सम ऑफ दिस रो क्या है? प्रीफिक्स सम ऑफ दिस रो 3 3 4 5 देन 7, ठीक है। द सेकेंड इसका प्रीफिक्स सम क्या है? 5 11 14 16 17, ठीक है। देन इसका प्रीफिक्स सम क्या है? 1 3 3 4 and 9. Then the last row, prefix sum of the last row 4 5 5 6 and 13, ठीक है। So this is the prefix sum of these 4 rows, ठीक है। तो मेरा इंट्यूशन क्या होगा, मेरा लॉजिक क्या होगा कि इफ़ आई सब्ट्रैक्ट दिस 14 -5 तो आई विल गेट द फर्स्ट रो सम, ठीक है। यहाँ पे इसका सम क्या है? 6 3 9, ठीक है। पहले तो इसका होगा, देन क्या होगा? 2 + 0 तो 2 आएगा, इसके 11। तो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो ये क्या है भाई, ये तो कॉलम 2 है ना, कॉलम 2 है, कॉलम 2 एंड ये क्या है? रो 2 है। तो कॉलम 2 जो मेरा है, तो फ्रॉम द कॉलम 2 आई विल सब्ट्रैक्ट, फ्रॉम द कॉलम 2 माइनस आई विल सब्ट्रैक्ट द कॉलम 1 -1 इंडेक्स, मतलब 14 - 5 तो क्या आएगा? 9 आएगा। 14 - 5 = 9 आएगा। एंड देन दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। ये तो प्रीफिक्स सम कह रहे हैं ना, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब 3 - 1 = 2। तो इस रो के लिए मेरा जो सम है, मतलब ये दोनों के लिए जो मेरा सम 2 था, यहाँ पे कैसे मिल रहा था? यहाँ पे मुझे इस एलिमेंट को एक बार एक्सेस करना है एंड इसको भी एक बार एक्सेस करना है। मतलब हम जब 2 एलिमेंट को एक्सेस करेंगे ना तो big of 1 आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2, तो देन आई विल ऐड these numbers 2 + 9 = 11। तो यहाँ पे अगर मैं करने जाऊँ प्रीफिक्स सम ना, तो प्रीफिक्स सम करते समय ही मेरा बिग ऑफ एन स्क्वायर लगेगा, क्योंकि फॉर द फर्स्ट रो, एक रो के लिए अगर मैं प्रीफिक्स सम करने जाऊँ तो बिग ऑफ एन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रो नंबर तो एन हो सकता है, ठीक है। तो बिग ऑफ एन स्क्वायर तो मेरा प्रीफिक्स सम में प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स बनाते हो गया, ठीक है। इफ़ तो अगर यहाँ पे इफ़ यार इज़ अ एन क्वेरीज, सो बिग ऑफ एन स्क्वायर, तो बिग ऑफ एन क्यूब यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया होगा? नहीं, यहाँ पे इन दिस केस इफ़ देयर इज़ ओनली वन क्वेरी, it will take also the query, it will also take the big O of n square, and if there is a n query, it will also take the big O of n square, because I need to create the prefix sum once, ठीक है। then I will only access these elements again and again, ठीक है। तो this is the problem number 2. Let's see the code of this problem. फर्स्ट जो मैंने किया था, तो 2D एक एरे बनाया था जिसके लिए मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है, प्रीफिक्स मैट्रिक्स करके। तो इसके लिए पहले प्रीफिक्स सम फॉर 1 रो, ठीक है। उसके बाद एक लूप चला के मैंने पूरा प्रीफिक्स सम निकाल लिया, प्रीफिक्स मैट्रिक्स बना लिया। देन मैंने क्या किया कि अगर जो कॉलम नंबर 1 है वो 0 है, तो कॉलम मतलब राइट कॉलम का जो है वो पूरा आंसर आ जाएगा, अदरवाइज़ मुझे माइनस करना पड़ेगा। वही लॉजिक है, दैट्स इज़ द प्रॉब्लम। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।